Assalamualaikum everyone. Am I audible? Okay. अच्छा आप लोग बीच में मुझे लेक्चर के दौरान भी लेक्चर क्या ये मतलब छोटा सा सेशन है जिसमें मैं वर्ल्ड स्पेस वीक के हवाले से बताऊंगा और उसके इवेंट्स के तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें झिझक महसूस नहीं करेगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन बीच में पूछना हो तो आप इंटरप्ट कर दीजिएगा। अच्छा तो हम लोग बस इसका फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज के स्पेस इंडस्ट्रियल सेशन को। और मैं सबको सलाम कहता हूँ आईएसटी की तरफ से, स्पेस एजुकेशन रिसर्च लैब की तरफ से। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। थैंक यू। ओके, इन द स्टार्ट जस्ट go we'll see the overview of the presentation. First, I will give you an introduction of our IST, my center in which I work in, my Space Education Research Lab. Then I will give you a short overview of the World Space Week, and then we'll discuss the how we can uh, register and how can you participate your students in the modules, and what will be the awards and honors. Then we can have question answer session. Question answer sessions is not another section. You can interrupt me and you can ask me question at any time. Okay, we will start this session with a few verses from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. And He has subjected for you the night and day, and the sun and moon, and the stars are subjected by His command. Indeed, in that are signs for a people who reason. Jazakallah. Okay, my name is Daniel Raza Kazi, and I work in Space Education Research Lab in National Center of GIS and Space Application. This center is based on in the Institute of Space Technology (IST). IST was established in 1997 as an aerospace institute. Then in 2002 we developed aeronautics and astronautics communication system engineering. In 2013 we developed and designed and launched Pakistan's first CubeSat. It was accredited with the Washington Accord in 2017. In 2020, National Center of GIS and Space Applications was established. And currently in 2024 and 2025, there are more than 23 graduate and bachelor's programs in IST. In IST, there is a center, National Center of GIS and Space Applications. It is a Higher Education Commission of Pakistan project. It has over 9 laboratories around Pakistan. It specializes in developing scientific human resource and national capacity in field of space science technology and application to uplift socio-economic development of Pakistan. In National Center, there is one lab, namely Space Education Research Lab, and which I have the honor to be working in like since 2021, like for past 4 years.
This labs develops innovative and sustainable interactive methods to promote space science and awareness, education, and popularization. Space Education Research Lab, these are the few projects that Space Education Research Lab does. Like we do Space Film Festival, we have NASA Space Application Challenge, we have Summer School Astronomy Camp, Space Destination School, Space Maker Camp, and World Space Week, for which we are gathered over here. And in the upcoming months, we are having a international conference, ICAST. It will be an international conference. Many speakers from outside Pakistan are coming, and many researchers are publishing their papers in this conference. These are some of our highlights. We have over 15 years of experience. More than 5,000 space students are engaged each year. More than 1,500 schools and universities and colleges across Pakistan have been engaged. We have did more than 500 plus space team awareness activities, and almost we also do teacher training workshops in which we equip the teachers with the STEM learning and how can they improve or how can they enhance their teaching methods through space science and new learning techniques. So, World Space Week is an international celebration of science and technology, which have contributed to the betterment of human condition. United Nations National Assembly declared in 1999 that World Space Week will be held each year from October 4 to October 10. In October 4, Sputnik was launched. That's why we start the World Space Week on October 4, and on October 10 in the 1990s, there was a bill was passed which promoted a space science. So we celebrate space science in October 4 to October 10. The week is celebrated around the globe in more than 86 countries with 16,000 plus space awareness organized worldwide. I want to tell you that Pakistan is last year Pakistan was the top 3 countries which did the most World Space Week activities and celebrated the most. World Space Week is a legacy of Institute of Space Technology, IST. We have been doing this since 2005, and this will be our 20th year in arranging this ceremony in this World Space Week. This year, the theme is living in space. This theme focuses on the technologies, innovations, and scientific advancements that make human survival and exploration beyond Earth possible, from life support system to sustainable habitats in space. And the modules and the competitions that we have designed all revolve around living in space. This year, World Space Week in IST will be held on these 2 dates, October 9 to October 10, from 9 to 1600 hours. These grades will be like 16 from 12, 6 from 12, I beg your pardon. And there will be 6 categories and 36 modules. 6 categories are space knowledge quest, space creative writing, space technology demonstration, space models, collectibles, space art and design, space life and sustainability. So, what is a space ambassador? Space ambassador is any person, is a focal person from a school or college that will coordinate. So, if we say from IST, I am the space ambassador of IST, or the team that will organize World Space Week is the space ambassador of IST. So you are the space ambassadors, and because of you, this event is successful.
because of your dedication, this event becomes what it is. So role of a space ambassador, they facilitate registration. They are a communication bridge between IST and the respective school. And the teachers know which students are the best and expert in which module and which competition. So you ensure the student participation also. Uh, so now we can discuss the modules, each module. अब यहाँ पे अगर कोई भी टीचर का किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछ सकते हैं किसी भी मॉड्यूल के हवाले से। मैं वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हुए जाऊंगा, और अगर आपको किसी में भी कोई इशू हो या कोई भी डिस्कशन करनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी स्पेस नॉलेज क्वेस्ट। Is everyone here now? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, first, our first module is Voices for the Future, Pakistan Space Policy Debate. Pakistan Space Policy Debate. Sorry. Uh, first, the first module is Pakistan Space Policy Debate. In this competition, participant from one school will deliver a 3-minute speech in English, either in favor of or against the Pakistan space policy. Pakistan Space Agency has published its space policy, and it can be downloaded from their website, or you can search the World Space Week. जी, one time can you please repeat? जी मैम। जी, मैंने कहा एक बार जरा रिपीट कर दें कि where can it be downloaded from? Ma'am, you can download this from the official page of the Suparco website. हमने इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखें। और या तो आप हमारी वेबसाइट, जो वर्ल्ड स्पेस वीक की वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है एनसीजीएसए की, तो उसमें आप नॉलेज रिपोजिटरी का एक पेज होगा, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैम आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगी तो वर्ल्ड एनसीजीएसए की वेबसाइट जो है वर्ल्ड स्पेस वीक की, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे इधर देखेंगे नॉलेज रिपोजिटरी आ रहा होगा ना, पे आप जैसे क्लिक करेंगी तो ये हमारा एक नॉलेज डेटाबेस है। तो उसमें आप देखें, इसमें हमने स्पेस पॉलिसी की फोल्डर इसमें बनाया हुआ है मॉड्यूल के नेम से ना, तो उसमें यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते अच्छा, ठीक है। हैं। स्पेस वीक। हाँ, तो इसमें स्टूडेंट ने या तो इसके हक में बात करनी होगी या इसके अगेंस्ट में बात करनी होगी। जजेस को इससे मतलब नहीं होगा कि वो क्या वो फेवर में बात कर रहे हैं या अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उनको इस पे मतलब होगा कि वो क्या लॉजिकल आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। तो ठीक है। द नेक्स्ट, यस ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इनका ये बता सकते हैं कि ये इनके जो डेट्स होगी, 9 तारीख को कौन कौन से इवेंट्स होंगे, 10 को कौन से होंगे, या 9 को भी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो 10 को ही होंगे, या इनकी कोई कैटेगरीज है या कोई शेड्यूल इसका है कि स्पेसिफिक? सर, इसकी जो टाइमलाइन है हम वो अक्टूबर 8 को शेयर करेंगे, या
अक्टूबर 7 के बिल्कुल एंड रात में शेयर करेंगे, अक्टूबर 8 के दिन में शेयर करेंगे उसकी टाइमलाइन। ये उस पर डिपेंड करता है, टाइमलाइन ओके डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉड्यूल किस दिन हो रहा है, उस जज की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वेन्यू कहाँ पे उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ होना है, तो इसका टाइमलाइन हम एंड में शेयर करेंगे। वो भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर। ठीक हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज उसके बाद क्विज है, रिटन क्विज होगा, एक एमसीक्यू बेस्ड होगा 45 मिनट्स का, जिसमें पाकिस्तान स्पेस हेरिटेज यानी पाकिस्तान स्पेस की जो पाकिस्तान स्पेस हिस्ट्री जो है उसके बारे में एमसीक्यूज होंगे। ओके, नेक्स्ट विल बी द गैलेक्टिक पजल्स, ये क्रॉसवर्ड्स होंगे, इसमें स्टूडेंट्स को क्लूज दिए गए होंगे और उन्होंने क्रॉसवर्ड को फिल करना होगा। ये कोई अच्छा, इसका कोई वोकेबलरी या ग्लॉसरी नहीं होगी इसकी, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे, स्पेस साइंस से रिलेटेड होंगे, ये स्टूडेंट्स बआसानी मतलब उनको मुश्किल नहीं होगी करने में। ओके, द नेक्स्ट विल बी द स्पेस क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन। इस बार हमने इस तरह किया है कि स्टूडेंट्स ने राइट भी करना है और वो रिसाइट भी करेंगे। पहले सिर्फ ये होता था कि सिर्फ ऐसे राइट किया जाता था और रिसाइट नहीं करते थे, अब इस बार राइट भी करेंगे और रिसाइट भी करेंगे। किस पे करेंगे? एक पिक्चर्स होंगी दो तीन, उनमें से एक सिलेक्ट करेंगे वो, और उस पर उन्होंने एक स्टोरी लिखनी होगी 60 मिनट्स में, और उसके बाद ही उन्होंने जजेस के सामने जो है वो प्रेजेंट करना होगा, डिसाइड करना होगा। इंग्लिश कंपटीशन भी है, या उर्दू कंपटीशन भी। उसके बाद एक है एलियन डायलॉग गैलेक्टिक कन्वर्सेशन, इसमें रिटन डायलॉग लिखे होंगे स्टूडेंट्स ने। सॉरी जी, एक सवाल था। जी ये जो आपने कहा है वर्ड्स फ्रॉम, ये स्टोरी टेलिंग जो है, ये उर्दू कंपटीशन इसमें अलग है और इंग्लिश अलग है, जी मैम, मतलब जी मैम, दो अलग कंपटीशन है, इंग्लिश के लिए अलग हो रहा है, उर्दू के या लिए। ओनली इन इंग्लिश? नो मैम, उर्दू के लिए अच्छा, अलग यानी कि कंपटीशन है, ठीक, इंग्लिश के लिए अलग। ठीक है, यानी कि हमने दो बच्चे सिलेक्ट करने हैं। जी मैम, तो ठीक है। ये भी बता दें प्लीज कि ये जो स्टोरी है, ये जो पिक्चर आप दिखाएंगे तो वो स्पेस रिलेटेड स्टोरी होगी, लिविंग इन स्पेस उससे रिलेटेड होगी, या कोई और पिक्चर हो सकती है साइंस रिलेटेड, मींस केमिस्ट्री बायोफिजिक्स? सर जो भी कुछ होगा ना वो स्पेस साइंस से रिलेटेड होगा इसमें। ओके। और रिटन डायलॉग का बता रहा था, उसमें स्टूडेंट्स ने एक डायलॉग लिखना होगा, एक फिक्शनल डायलॉग होगा, ये ग्रेड 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए, छोटे स्टूडेंट्स के लिए। इसमें एलियन से उन्होंने डायलॉग लिखना होगा, और थीम क्या होगी उसकी? लिविंग इन स्पेस ही होगी। अच्छा, डायलॉग इस तरह का होगा, अगर उन्होंने अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर जब सेंटेंस एंड हो रहा है तो उसके बाद से उन्होंने नेक्स्ट डायलॉग उस सेंटेंस एंड के बाद से उन्होंने स्टार्ट करना है। और कोशिश ये करनी है कि A to Z इस तरह डायलॉग लिखेंगे, A to Z सारे कवर होगा, पूरे अल्फ़ाबेट। और फिर उसके बाद ये भी जो है, ये भी डायलॉग जो है ये लिखे जाएंगे, और उसके बाद उसको रिसाइट किया जाएगा, डायलॉग पढ़ के सुनाएंगे स्टूडेंट्स जजेस के सामने। एक्सक्यूज मी, ये जो क्रॉसवर्ड है ये अल्फाबेट्स होंगे या कोई पिक्सल, कोई अक्षर होगी उसके पजल होंगे, उनको अरेंज करना होगा? नहीं नहीं, क्रॉसवर्ड वर्ड्स ही होंगे। ओके। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेस टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन की। इसमें जो पहला मॉड्यूल कंपटीशन है वो है स्पेस रोबोटिक्स लूनर रोवर चैलेंज। इसमें स्टूडेंट्स ने एक इसमें स्टूडेंट्स ने एक रोवर बनाना है, यानी एक ऑटोमेटेड कार जो होती है वो बनानी है, जो कि क्या करती हो, उसमें एक फंक्शन ये होना चाहिए कि वो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करती है, कि अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो वो अपना रास्ता तब्दील कर जाए।
और उसके अलावा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए और भी चीज़ें इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से और भी सेंसर्स लगा सकते हैं, कैमरा लगाना चाहें कैमरा लगा सकते हैं। नेक्स्ट कंपटीशन है फंक्शनल कैनसेट बनाना है स्टूडेंट्स ने। कैनसेट इज अ स्मॉल सैटेलाइट, स्टूडेंट सैटेलाइट, जिस जो कि ऐसा छोटी सैटेलाइट हो जिसमें एक आईएमयू सेंसर लगा हो, प्रेशर सेंसर हो, टेम्परेचर सेंसर हो, और वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता हो विदाउट एनी केबल, बल्कि वो ट्रांसमिट करता हो। नेक्स्ट इज आवर मोस्ट पॉपुलर कंपटीशन, द एको रॉकेट कंपटीशन। इसमें स्टूडेंट्स ने वाटर रॉकेट बनाते हैं और वो लॉन्च करते हैं। अच्छा, इस साल हमने ये किया है कि वो वाटर रॉकेट बना के लाएंगे। हाँ, पहले से हम सिर्फ लॉन्च करेंगे। पहले क्या क्या होता था कि पहले हम वाटर रॉकेट भी वो बनाते थे, ऑन द स्पॉट बनाते थे, लेकिन हमने अब ये ज़्यादा दी है कि वो घर से बना के ला सकते हैं। घर से मुराद स्कूल या कॉलेज से अपनी टीम के साथ बना के ला सकते हैं। अच्छा, ये टीम कंपटीशन है, यानी आप 2 मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और हम सिर्फ उसकी वाटर रॉकेट को लॉन्च करेंगे। इसी तरह इसमें जो लेवल हैं ये वर्चुअसो लेवल और वेजिटेरियन लेवल जो है ये अलग अलग हैं, या इसमें वो कैटेगरी नहीं है, वर्चुअसो लेवल और वेजिटेरियन लेवल इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ? जी सर, ये इसमें अब जैसे जिसमें 9 to 12 लिखा हुआ है तो वो सिर्फ 9 to 12 के लिए है। उसमें ये नहीं है कि वो 6 to 8 के लिए अलग है। जिसमें 6 to 8 लिखा हुआ है वो 6 to 8 के लिए, वो ओके। वेजिटेरियन के लिए। अब वाटर रॉकेट कंपटीशन जो है वो सिर्फ वर्चुअसोस के लिए, वेजिटेरियंस के लिए नहीं। अच्छा जी, ये जो स्लाइड जिस पे आप ये सारा कुछ हमें दिखा रहे हैं, जी मैम। ये कहाँ से हम बाद में ओपन कर सकते हैं? क्योंकि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, ताकि उनको एग्जैक्टली बता सकें कि कंपटीशन क्या है। मैम, ये मैं वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है जूम सेशन, ये मैं अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है हमारा उस पर भी शेयर कर दूंगा, जो नॉलेज हाँ, उस पे शेयर रिपोजिटरी कर है। दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है, ताकि जो बच्चे पार्टिसिपेट करें वो काफ़ी डिटेल्स पूछेंगे, फिर उसके लिए आपको बार-बार कॉल ना करना पड़े ना, इसमें दे उनको ये हम दिखा दें जी मैम। कि ये है। जी मैम। और मैम, ठीक है? नॉलेज रिपोजिटरी जो है उस पर भी मैं शेयर कर दूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह ग्लाइडर कंपटीशन जो है वो भी अ, हर साल ये होता था कि बालसा वुड हम देते थे और वो ग्लाइडर बनाते थे, लेकिन इस साल हम ये उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो अपने घर से बना के लाएंगे, यानी स्कूल कॉलेज से। और बालसा वुड मटेरियल सिर्फ बालसा वुड होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। और आईएसटी मैनेजमेंट टीम जो है वो सिर्फ फ्लाई करेगी, और जजेस जो हैं वो उसकी स्टेबिलिटी, फ्लाई ड्यूरेशन और ओवरऑल डिज़ाइन को जज करेंगे। और इसकी जो डायमेंशन है वाटर रॉकेट की और बालसा वुड ग्लाइडर की, वो मैंने शेयर कर दी है उस पर नॉलेज रिपोजिटरी। देन द नेक्स्ट इज द मैपिंग स्टोरी पिक्टोरियल जियो टैगिंग। इसमें स्टूडेंट्स ने गूगल अर्थ पे एक स्टोरी मैप बनाना है। स्टोरी मैप जो होगा वो एक 1 डे विजिट, उन्होंने एक 1 डे विजिट करना है और कहीं भी किसी भी लोकेशन से, और जो लोकेशन हो एटलीस्ट 5 किलोमीटर से एक दूसरे से दूर। हो सकता है वो इस्लामाबाद की कोई लोकेशन हो, कुंडी की कोई लोकेशन हो, नेचुरल साइट्स हो, कोई अम्यूजमेंट पार्क्स हो, या कोई म्यूजियम्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। उन्होंने स्टोरी उसकी क्रिएट करनी है। अच्छा, गूगल अर्थ, लेकिन ये स्टोरी जो है वो गूगल अर्थ पे ही बनती है। गूगल अर्थ पे एक आप उसकी गूगल अर्थ पे बहुत आसानी से स्टोरी मैप बन जाती है। वो उन्होंने यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी देख सकते हैं। अगर मुझे कोई इसकी गाइड मिलेगी तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा नॉलेज रिपोजिटरी पे। और फिर ऑन द डे ऑफ द इवेंट ये अपने साथ स्टोरी लाएंगे यूएसबी में, एक गूगल अर्थ की फाइल जरूर लानी है सबने। और फिर ऑन द स्पॉट जज जो होंगे वो गूगल अर्थ पे उसको रन करके देख सकते हैं, या तो गूगल अर्थ पे ही बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज के बाद स्पेस कैटेगरीज जो हैं, स्पेस मॉडल्स एंड कलेक्टिबल्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कैटेगरीज देखें सारी, आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं वाली चीज़, अगर आप सारी कैटेगरीज देखें तो इसमें मतलब ह्यूमन नॉलेज की तमाम फील्ड्स इसमें कवर हो गई।
तो इसमें बताने का मकसद हमारा ये है कि स्पेस साइंस सिर्फ एक लिमिटेड फील्ड नहीं है जो कि इंजीनियरिंग या मैथ्स से रिलेटेड है, बल्कि इसमें आर्ट्स भी आती है, इसमें लिटरेचर भी आती है। स्पेस साइंस ने तमाम फील्ड्स को अहाता किया है। और दैट्स एन ये इससे स्टूडेंट इंस्पायर हो सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि हम उन्हें सिर्फ इंजीनियर बनना है, बल्कि अगर स्पेस साइंस का उन्हें शौक है तो वो विजुअल आर्ट्स में जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कैटेगरी स्पेस मॉडल्स एंड कलेक्टिबल्स। इसमें दो स्पेस प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट डिस्प्लेस जो है वो 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑपरेशनल भी हो सकता है, वो मॉडल भी हो सकता है कोई, और उसकी थीम जो होगी वो लाइफ इन स्पेस होगी या लिविंग इन स्पेस होगी, जो कि हमारी इस साल वर्ल्ड स्पेस वीक की भी थीम है। और इसको हम डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले के दौरान जजेस जो हैं वो आके उनके प्रोजेक्ट देखेंगे, उनसे सवाल करेंगे, और उसको एक छोटी सी ओरल ब्रीफ भी देंगे स्टूडेंट से। इसी तरह स्पेस फ्लैटली और स्पेस क्वाइनेज है। स्पेस फ्लैटली इज द कलेक्शन ऑफ स्पेस पोस्टेज स्टैम्प्स। जो स्टैम्प्स होते हैं ये स्पेस एजेंसी हमेशा पब्लिश करती हैं, तो वो या तो उन्होंने रियल स्पेस पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट कोई करता है तो वो ले आए, अगर उनको नहीं मिला तो वो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको ब्लैक चार्ट पेपर पे और उसको खूबसूरत सा बना के वो उसको डिस्प्ले करने के लिए ला सकते हैं। और ये भी इन्होंने घर से बना के लाना होगा। यहाँ पे हम उनको डिस्प्ले बोर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एहतियातन अपने साथ थंब प्रिंट्स, टेप्स वगैरह सारी चीज़ें खुद भी आए, मार्कर्स वगैरह, अगर उन्हें कोई ऑन द स्पॉट कोई चेंजिंग करनी है। इसी तरह स्पेस कॉइनेज है। स्पेस कॉइन्स होते हैं, तो वो भी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो स्पेस एजेंसी जो हैं वो स्पेस कॉइन्स पब्लिश करती हैं किसी भी हिस्टोरिकल मोमेंट पे, तो वो भी इसी तरह डिस्प्ले के लिए वो ला सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज द स्पेस वॉयेजर क्रिएटिव एस्ट्रोनॉट डिज़ाइन। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक 5 फीट का मॉडल बना के लाएंगे एस्ट्रोनॉट का। अ, वो कोई सा भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर रिसाइकेबल मटेरियल हो, इको फ्रेंडली मटेरियल हो तो वो तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं एक मॉडल एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए। और इसकी साइज जो होगी 5 फीट होगी, तो जब डिस्प्ले किया जाएगा तो एक बड़ा सा एक ऐसा लगेगा पूरा एस्ट्रोनॉट है यहाँ पे। जजेस जो हैं इसकी क्रिएटिविटी को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कितना वो रियल एस्ट्रोनॉट से मिलता जुलता है। हाँ, नेक्स्ट इज द स्पेस आर्ट एंड डिज़ाइन। फर्स्ट इज द स्पेस पेंटिंग्स। इसमें हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे ऑन द स्पॉट। थीम उसकी होगी, हर हर कंपटीशन की थीम लिविंग इन स्पेस ही है, तो उन्होंने कलर पेंटिंग बनानी होगी। और मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 3 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन 2 आवर्स की होगी, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। और 2 आवर्स उनके पास होंगे और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। मटेरियल जो पेंटिंग मटेरियल है वो स्टूडेंट अपने साथ खुद लाएंगे, बोर्ड्स लाना है, पेंटिंग लानी है, कुछ और भी पेंट्स लाने हैं, कोई उन्होंने पेंसिल्स, शॉर्पनर, रबर, सब वो अपना खुद लाएंगे सामान, हम सिर्फ उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज द स्पेस कैलीग्राफी। स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई सी भी होली कुरान की आयत अपने साथ रेफरेंस के तौर पे ला सकते हैं। आयत जो है वो स्पेस साइंस से रिलेटेड है और उसको वो कैलीग्राफ करें। देन इज द एलियन स्केचिंग। इसमें हम एक A4 शीट प्रोवाइड करेंगे। ये 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स का A4 शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें उन्होंने एक एलियन बनाना होगा स्टूडेंट्स ने, और ये सिर्फ स्केच होगा तो इसमें पेंसिल ही इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट इज द कॉस्मोस स्पेस स्केचिंग। इसमें ये 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोई स्केच बनाएंगे लिविंग स्पेस के लिए, हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट इज द एस्ट्रोफोटोग्राफी मून इमेजिंग।
अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन है। इसमें स्टूडेंट्स ने मून की तस्वीर लेनी है यूजिंग एनी कैमरा, और दे कैन यूज, अगर उनके पास टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप के ज़रिए से तस्वीर ले सकते हैं। अच्छा, इसकी ये है कि ये जो फोटोग्राफी जो तस्वीर होगी, ये उन्होंने ओरिजिनल रॉ रॉ फाइल जो होगी वो भी साथ सबमिट करवानी है, क्योंकि उससे जजेस ये देखेंगे कि इसकी ओरिजिनलिटी है या इन्होंने कुछ चीटिंग तो नहीं की। और इसको ऑन द डे सॉफ्ट फॉर्म में भी इन्होंने लाना है और हार्ड फॉर्म में भी प्रिंट करके भी लाना है, तो इसको भी डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट इज द डिजिटाइजिंग स्पेस पोस्टर डिज़ाइन। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो MS पेंट, कोलर ड्रॉ, कैनवा या एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर, जो भी उनका प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर है, उस पे वो एक पोस्टर बनाएंगे जो कि लिविंग इन स्पेस से ही होगा रिलेटेड अगेन। और हम हमारी IST लैब में होगा ये। तो कंप्यूटर अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि वो उनका कोई सॉफ्टवेयर है ऐसा है, तो वो लैपटॉप ला सकते हैं साथ। और प्रेफर मैं ये रेकमेंड करूँगा, अगर वो लैपटॉप साथ ले आएँ तो उस पर ऑन द स्पॉट वो बनाएं जजेस के सामने, तो हमें कोई मसला नहीं है। देन इज द स्पेस लोगो, डिज़ाइनिंग स्पेस लोगो। तो जैसे कि सब, हाँ, हमें पता है कि हम पाकिस्तान जो है वो 2026 में एक एस्ट्रोनॉट सेंड कर रहा है to the Chinese space station in 2026 and a lunar rover in 2027. So that will be a very big achievement for Pakistan. तो इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स ने 2 डिजिटल लोगोस अपने होम से बना के लाने बिफोर हैंड। एक लोगो जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट इन स्पेस को, और दूसरा पाकिस्तान लूनर रोवर को। और ये लोगो वो होम, स्कूल, कॉलेज में बना सकते हैं यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, और अपने साथ वो एडिटेबल फाइल भी लाएंगे और एक JPEG फाइल भी। यानी एडिटेबल फाइल से बाद जो उनकी रॉ फाइल होगी, ताकि जो जजेस हैं वो उसी सॉफ्टवेयर पे वो रन करके उसको जज कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो टू नेक्स्ट कलेक्टिंग मेमोरीज और ब्रॉडकास्टिंग स्पेस है। अच्छा मिस अनीला, आप कह रही हैं कि कलर पेंसिल अलाउ हैं। अगर कलर, वैसे तो ब्लैक एंड वाइट का ही कंट्रास्ट देखा जाता है स्केचिंग में, लेकिन अगर कलर पेंसिल से बनाना चाहें बना लेंगे, मसला नहीं। अच्छा, ये मेमोरीज और कलेक्टिंग मेमोरीज और ब्रॉडकास्टिंग स्पेस, इसमें स्टूडेंट्स ने ऑन द डे ऑफ द इवेंट यानी 9 और 10 अक्टूबर को स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्क स्पेस वीक उन्होंने स्नैप बनानी है स्नैप वाले कॉम्पिटिशन में। स्नैप्स ऐसी होनी चाहिए, 5 स्नैप्स होनी चाहिए जो कि 3 एक्टिविटी पिक्चर्स हों, यानी दे आर नॉट सेल्फीज, राइट, और 2 ग्रुप सेल्फीज हैं। जजेस जो हैं वो मैंने ज़्यादातर अभी तक जितने भी मैंने कंपटीशन देखे हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है, में सबसे टैबलेट्स अलाउ हैं, ला सकते हैं टैबलेट अपने साथ, लेकिन वो ऑन द स्पॉट बनाएंगे जजेस। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले से बना बनाया स्टूडेंट्स ले आए और उसी को वो कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे और उसको बना सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट बनाएंगे। और कॉम्पिटिशन्स के दौरान स्टूडेंट टीचर्स जो हैं वो अलाउ नहीं होंगे इन द प्रेमिसेस। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने ये देखा ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें स्नैप कंपटीशन और ये ब्लॉग कंपटीशन, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप फोटो लेते हैं अपने स्पेस एम्बेसडर्स के साथ, और वो एक ग्रुप फोटो होती है, उसमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी वर्ल्ड स्पेस की। तो कोशिश ये करनी है जितनी भी ग्रुप फोटोज लेनी है या जो भी सेल्फीज हैं या ब्लॉग्स हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आए और आपके स्कूल की एक्टिविटी नज़र आए या पूरे वर्ल्ड स्पेस की एक्टिविटी नज़र आए, और फिर उसको हम देख उसको जज जज किया जाएगा। अ, अच्छा, ये 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए भी है और 6 to 12 स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इसमें एक रिपीटिशन हो रही है ब्रॉडकास्टिंग स्पेस का, ये 6 to 8 के लिए है एक कंपटीशन, और दूसरा कंपटीशन 9 to 12 के लिए। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ।
ब्लॉग की जो लिमिट है वो मैक्सिमम वीडियो ड्यूरेशन जो है वो 2 मिनट्स है, और इसमें वो स्टूडेंट जो हैं वो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन ऐसा होगा कि ये हम सेकंड डे ही यानी 10 अक्टूबर को ही सबमिशन देंगे। तो उनके पास पूरा एक दिन होगा जिसमें वो अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड डे पे इन्हें सबमिट करना है। Okay, next is the space life and sustainability, the last category. इसमें ये presentations हैं ज़्यादातर, जो भी competition में presentations हैं। इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो सर्वाइवल इन स्पेस बिल्डिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें स्टूडेंट्स ने ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें आइडियाज़ शेयर करना है, जो कि ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर करना है लाइफ सपोर्ट जो कर सके ह्यूमंस के लिए इन मून, ओनली इन मून। तो प्रेजेंटेशन जो है वो एक्सप्लोर कर सकती है एयर प्योरिफिकेशन मेथड, वाटर साइकिलिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और पार्टिसिपेंट इंटरनेट रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के लिए, और जितने ऑथेंटिक रिसोर्स यूज़ करेंगे जजेस उतना ज़्यादा इंप्रेस होंगे। के बाद है हीलिंग बियॉन्ड ग्रेविटी स्पेस मेडिसिन चैलेंज। ईच टीम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर presentation exploring how medical care can be provided in space station। स्पेस स्टेशन में किस तरह इमरजेंसीज में मेडिकल रिस्पॉन्स दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज इंजरीज हो जाए, इमरजेंसीज इन जीरो जी। असल असल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जीरो ग्रेविटी सिचुएशन में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या मेडिसिन है, ऐसी क्या सपोर्ट सिस्टम होंगे हेल्थ के हवाले पर, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन में उनको फ़ायदा देंगे। अच्छा, टीचर से मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि नो, मिस अनिला एक टीम, मैं समझा नहीं मैम आपका सवाल। मैम मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे अगर एक एक टीम स्टेइंग कनेक्टेड में है और दूसरी टीम कॉस्मिक फार्मिंग में है, तो वो क्या कर सकते हैं या नहीं, ये कह रही हैं आप? जी जी जी, दो में मॉड्यूल में आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट, लेकिन मैम उससे आपको, हाँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करें कि दो मॉड्यूल्स में दो अलग मुख्तलिफ टीम हो, ताकि फिर आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाए participate में। करने को तो आप कर सकती हैं, लेकिन जी। ओके, द नेक्स्ट इज द मार्शन सेटलमेंट क्रिएटिंग होम्स। टीम्स जो हैं वो सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट का एक डिज़ाइन पेश करेंगी ऑन द मार्शियन सरफेस, ऑन मार्स। अच्छा, इसका खास चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि मून, अगर मून पे बात हो रही है तो वो मार्स पे स्टूडेंट्स करने लग जाए इस तरह नहीं। The presentation should cover essential aspects such as habitat construction, life support system, एनर्जी जनरेशन, फूड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बिल्कुल एक जैसे ह्यूमन कॉलोनी अगर बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं टीचर से गुजारिश करूँगा कि स्टूडेंट्स को मतलब ये सभी फेस कर रहे हैं, अ, ये मतलब स्टूडेंट चैट जीपीटी से या एआई से प्रेजेंटेशन लास्ट ईयर बनाते लाए थे। अच्छा, वो साफ पता चल जाता है कि ये उससे एआई टूल इस्तेमाल किया हुआ। एआई टूल इस्तेमाल करें उसको हेल्प अपने स्किल अपने कुछ आइडियाज देने के लिए, लेकिन सोलली उस पर वो नहीं करें स्टूडेंट, उन्होंने खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अगर एआई से उन्होंने किया तो वो जजेस फौरन पता लगा लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज एथिकल फ्रंटियर स्पेस लॉ एंड गवर्नेंस। इसमें स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन पेश करनी है किसी भी स्पेस लॉ और पॉलिसी के बारे में, उसको बताना है कि वो किस तरह ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है, या हम और से ऐसे क्या क्या लॉज और पॉलिसीज ऐसी अपना सकते हैं जो कि फ्यूचर में बेनिफिशियल है। पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि वो तनकीद करें ट्रीटीज पे जो अभी पास हुई, तो वो एक अच्छा, और उससे पता चलेगा उन्होंने रिसर्च की हुई। स्टेइंग कनेक्टेड स्पेस कम्युनिकेशन, इसमें पार्टिसिपेंट्स ने जो फ्यूचर लूनर सेटलमेंट, अब उन्होंने
तस्वीर कर लिया कि फ्यूचर में एक लूनर सेटलमेंट हो गई है चांद पे, बस्ती आबाद हो गई है, तो उसमें पार्टिसिपेंट जो हैं वो किस तरह आपस, पार्टिसिपेंट कह रहा हूँ, उसमें जो लूनर सेटलमेंट में जो वहाँ के जो रिहायशी हैं वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे. Presentation should explore solution to challenges such as signal delays, bandwidth limitations, lunar environment से क्या असर पड़ता है सिग्नल्स पे, अर्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किस तरह बिहेवियर होता है, और लूनर सरफेस पे किस तरह होता है. तो ये उन्होंने इसको इंश्योर करना है कि किस तरह सिक्योर हो कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस हो, इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द मून सरफेस. Okay, the next is the cosmic farming, food production in space. मार्शियन सोसाइटी में किस तरह उन्होंने फूड की प्रोडक्शन करनी है. Presentation should explore techniques such as hydroponics, aeroponics, algae-based nutrition, or sustainable farming that can support astronauts' long-term survival beyond. तो उन्होंने मार्स की सरफेस को नजर रखी. अच्छा, अब जैसे 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 हम लूनर सेटलमेंट या मार्शियन कॉलोनी पे बनाना शुरू करेंगे फ्यूचर में, तो हमें एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल फिटनेस है और हमारी जो मेंटल फिटनेस है उसका भी ख्याल रखना होगा. तो ये जो दो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है ये उसी के हवाले से हैं. कि जो 29th मॉड्यूल है उसमें हमने देखना है कि उन्होंने स्टूडेंट्स ने इनोवेटिव मेथड्स बताने प्रेजेंटेशन में जो कि एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकली फिट रखें लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन. Presentation should address challenges such as muscle atrophy, bone density loss, cardiovascular deconditioning in microgravity. आपको पता है माइक्रोग्रेविटी में डेंसिटी लॉस हो जाती है, आपकी जो बोन होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, तो इसको मद्देनजर रखना होगा. मुसनीला सिर्फ मून रेजिडेंट्स आपस में किस तरह बात करें. मून और अर्थ का उनसे मून और अर्थ के बारे में हम नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि मून के जो रेजिडेंट्स हैं वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, क्या मेथड्स होंगे, क्या इसी तरह टेलीग्राफ सिस्टम से शुरू होगा फिर रेडियो सिग्नल पे आएगा या कुछ और उनके जहन में कुछ और. ये स्टूडेंट्स ने खुद सर्च करना. ओके, हम फिजिकल फिटनेस पे हमने देखना था कि एस्ट्रोनॉट्स किस तरह अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्या एक्सरसाइज इक्विपमेंट होंगे, क्या जिम डिज़ाइन होंगे, किस तरह रेजिस्टेंस बेस्ड वर्कआउट से हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स होंगे. ये स्टूडेंट्स ने रिसर्च करना है ऑनलाइन और फिर इसकी प्रेजेंटेशन देनी है. जितनी ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन, जितनी टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है. एक जनरल बातें होती हैं प्रेजेंटेशन में जो कि वो पता चल जाता है कि ये एआई से बनाया हुआ है, जनरल होती हैं वो. कॉन्क्रीट चीज़ होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में. देन इज द माइंड एंड मोटिवेशन स्पेस साइकोलॉजी. तो मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पे अर्थ में इतना हमारे प्रॉब्लम होते हैं मेंटल हेल्थ का, तो जब लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन एक मिशन में लोनलीनेस होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी दूसरों से, तो उसमें मेंटल हेल्थ को क्या इफेक्ट होंगे. आइसोलेशन, कंफाइनमेंट, स्ट्रेस इन स्पेस हैबिटेट, उसमें क्या स्टूडेंट्स पे असर होगा. तो स्टूडेंट्स ने इस पर प्रेजेंटेशन बनानी है कि उस चैलेंजेस को किस तरह उन्होंने ओवरकम करना है. देन इज द कॉस्मिक क्विजीन, स्पेस रेस्टोरेंट. स्टूडेंट्स ने इसमें एक डिज़ाइन पेश करना है कि अब स्पेस पे हम सारे चलेंगे तो हमें रेस्टोरेंट भी चाहिए वहाँ पे. तो स्पेस बेस किस तरह रेस्टोरेंट हम बना सकते हैं जो कि माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में और इनोवेटिव फूड हो, उसमें फूड किस तरह सर्व किया जाएगा, फूड मेन्यू क्या होगा. अच्छा, डिज़ाइन, अगर उनके जहन में एक डिज़ाइन हो तो वो उसको मॉडल या कोई एक रेस्टोरेंट का डिज़ाइन भी वो बना सकते हैं प्रेजेंटेशन में, विजुअली उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए. यहाँ पे मेरा बार होगा, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होगा, इस तरह फूड सर्विंग होगी, उसका ये ड्रेस होगा, मेरे कुजीन के जो वेटर्स होंगे उनका ये फॉर्मल ड्रेस होगा, इस तरह. ये भी फन कॉम्पिटिशन है. ओके, इसके बाद आई थिंक 5 रहते हैं.
तो दिखा देता हूँ शायद नहीं। The next is, yes, the last is the Red Planet Games, Martian Sports. इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन ऐसी बनाएंगे जिसमें उन्होंने अ, अ, बताना है कि मार्शियन सरफेस पे ऐसा कौन सा स्पोर्ट, ऐसा किस तरह का स्पोर्ट होगा, स्पोर्ट डिज़ाइन करना है उन्होंने, रूल्स और लॉज उसके स्पोर्ट्स के, बिल्कुल यूनिक स्पोर्ट होना चाहिए वो। जैसे क्रिकेट नहीं होना चाहिए, फुटबॉल नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे स्पोर्ट गेम उन्होंने डिज़ाइन करना है जो कि उसमें उसके रूल्स हों, उसके ऑब्जेक्टिव्स हों, उसका विनर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका लूजर कैसे डिफाइन किया जा सकता है। और जजिंग विल बी बेस्ड ऑन द ओरिजिनलिटी, साइंटिफिक प्लॉजिबिलिटी, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, इमर्जिंग इमेजिनेशन विद द प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ लाइफ ऑन। तो ये सर जो गेम होगी ये तो इंडोर गेम ही हो सकती है, क्योंकि इतनी लिमिटेड स्पेस में तो आउटडोर गेम हो नहीं सकती। आउटडोर तो मुश्किल है कि स्पेस में इतनी जगह हो। आप क्या कहते हैं सर, इंडोर गेम ही होगी, आउटडोर तो हो नहीं सकती? सर, ये स्टूडेंट्स अगर रिसर्च करें तो मुझे लगता है वो आउटडोर गेम भी बना सकते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ओके। जी। अच्छा, यहाँ पे हमने सारे 36 कैटेगरीज हमने कवर कर लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक सारे कवर होगा। तो लास्टली हम अ, उसका बस हम मैं थोड़ा सा बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को वो देखना चाहता हूँ, ओवरव्यू करना चाहता हूँ। इसमें आपने अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी तो आपने जैसे स्पेस एम्बेसडर फोरम में आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप आएंगे तो इवेंट रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, तो इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें वो डिटेल्स बता रहा होगा कि कौन सी ब्रांच में आपने सबमिशन करानी है, पेमेंट करनी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद जब आप ये सबमिट करवा देंगे अपनी पेमेंट, अपनी डिटेल्स डाल के सारी, अच्छा इसमें इसका खास ख्याल रखिएगा कि जो डिटेल आप इसमें सबमिट एंटर करेंगे वो उसी डिटेल्स के जरिए आपके साथ कम्युनिकेशन होगी। मिस अनिला, आपने कौन सी एडिटिंग करनी है, इस इवेंट मैनेजमेंट में या स्पेस इन्वेस्टर फोरम में? मैम, आपने जो एडिट करना हो ना, आप ऐसा करेगा जो हमारा, आप, मैं इसमें ना सबको लिख देता हूँ। मैम आप, अच्छा, सबको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने जैसे अभी मैं बताता हूँ मैम, आपके सवाल पे आता हूँ। पहले बस ये क्लियर कर दूँ, इसमें जब आप इन्वेस्टर डिटेल्स अपनी इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद आप पेमेंट पेमेंट की डिटेल्स डालेंगे, तो उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगा। उस ईमेल में आपकी इन्वेस्टर आईडी होगी। वो इन्वेस्टर आईडी आपने याद करके रखनी है, संभाल के रखनी है। उसी के जरिए आप नेक्स्ट फॉर्म सबमिट करा सकेंगे। अच्छा, इस उस एम्बेसडर आईडी के साथ साथ एक पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आएगा, जिसमें आप उस लिंक को फॉलो करते हुए आप स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वो कुछ इस तरह का होगा। वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपने एम्बेसडर आईडी डालनी होगी और तमाम स्पेस मॉड्यूल्स को ना सेलेक्ट करना होगा आपने। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, यानी तो इसकी लिमिटेड सीट है हर कंपटीशन की, तो अगर ये फेल हो जाएंगी तो फिर उसमें हम फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे आपके पार्टिसिपेंट को। अच्छा, उसमें फिर आप ये देख सकते हैं जैसे कि हर पार्टिसिपेंट फॉर्म में ना हर मॉड्यूल के बाद आपके पास नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट पूछेंगे आपसे वो, और ग्रेड बताना होगा। और उसी तरह अगर टीम कंपटीशन है तो आपने दो नाम लिखने होंगे और ग्रेड सेलेक्ट करना होगा। अगर इस फॉर्म में आपको कोई मिस्टेक लगे, जैसे कि
कोई कंपटीशन ग्रेड 6 to 8 का था, लेकिन इस फॉर्म में ग्रेड 9 to 12 लिखा हुआ है, तो आपने मुझे बताना है उसको, ताकि हम उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, इसमें आपने बहुत कोशिश ये करनी है कि जितने नाम लिखेंगे आप नेम ऑफ द पर्सन बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ होने चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं नामों को यूज करते हुए तमाम लिस्ट बनेंगी, तमाम सर्टिफिकेट्स प्रिंट होंगे। तो अगर इसमें मिस्टेक करेंगे आप तो सर्टिफिकेट फिर स्पेलिंग गलत होगी। ठीक। और बस लास्टली हमने एक चीज़ ये बतानी थी कि इस वर्ल्ड स्पेस वीक में एक स्पेस चैंपियन होता है, जो कि वो उस स्कूल को दिया जाता है अवार्ड, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट जीतता है। तो सेकंड इज द स्पेस रनर अप। स्पेस रनर अप वो स्कूल होता है जो कि सेकंड मोस्ट अवार्ड्स विन करता है। इसमें विनर अवार्ड मिलता है, विनर शील्ड मिलती है, और विनर सर्टिफिकेट मिलेगा स्टूडेंट को, जो कि वो कंपटीशन विन करेगा, और रनर अप को सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जो स्पेस एम्बेसडर्स हैं, उनमें से आपको किसी एक को बेस्ट स्पेस एम्बेसडर मिलेगा अवार्ड, और तमाम स्पेस एम्बेसडर्स को शील्ड सोने में मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हर स्टूडेंट को मिलेगा, चाहे वो विन करें या नहीं करें, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हर किसी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से आज स्पेस एम्बेसडर प्रोग्राम पूरा हो गया। अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क मी। जी, काइंडली सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। क्या मैम? सॉरी जी, हम लोग 2 लोग इकट्ठे बोल पड़े, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जी मैम, मैं कर दूँगा। जी मैम, मैं कर दूँगा। व्हाट्सएप पे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा आसान हो। जो आप हैं ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। जी ओके। मैम अनीला का एक क्वेश्चन है। जी अच्छा, हाँ। अ, अच्छा, मैं सबको, सारे स्पेस एम्बेसडर्स को ये कहूँगा कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आप सबमिट ना करवाएं, पार्टिसिपेंट सेव कर लें। अच्छा, और अगर किसी ने सबमिट करा दिया और कोई एडिटिंग चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, या मुझे इस जीमेल पे ईमेल कर दें कि आप इस मॉड्यूल, ये मॉड्यूल नंबर है, ये मॉड्यूल का नाम है, और मैं इसमें इस स्टूडेंट का नाम रिप्लेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और या इसमें ये करेक्शन कर दें, तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। वो अब आपके पास राइट नहीं है। अगर आपने दोबारा से खुद से फिल करना होगा तो आपने दोबारा से शुरू से फिल करना होगा। तो आपने सेव करते रहना है अपने फॉर्म को, सेव का ऑप्शन है फॉर्म में पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन का। लेकिन आपने एक दफ़ा सबमिट करा दिया तो फिर आप उसके बाद एक्सेस नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, अभी एक क्वेश्चन था कि ये लिंक कहाँ से मिलेगा। ये लिंक स्टूडेंट पार्टिसिपेंट का लिंक आपको जब भी मिलेगा जब आप पेमेंट करें, इवेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बगैर ये वाला लिंक आपको नहीं मिलेगा। और कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज टेल मी। सर ये जो रजिस्ट्रेशन होगा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो मॉड्यूल नंबर 8 है, ऑर्बिटल मिनिएचर कैनसेट सैटेलाइट, तो इसमें जो है आप लोगों ने सेंसर्स मेंशन किए, तो क्या ये सेंसर्स इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं? और सेकेंड कि क्या इसमें क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा का वर्ड भी यूज़ किया गया है, तो इसमें क्या कोडिंग वगैरह भी इन्वॉल्व है? जी मैम, ये कैंसेट की जितनी भी हमने, ये हमारी लैब ने बनाए हुए हैं, ये तो सारी जो ये इक्विपमेंट है या सेंसर जो है ना, ये इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आ जाते हैं, और ये कॉस्टली भी नहीं होते इतने। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये IMU सेंसर है, आई थिंक ये अराउंड 1000 का होगा। प्रेशर सेंसर 250 रुपीज़ का होगा। टेम्परेचर सेंसर भी टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर सेम होते हैं।
और जो इसमें महंगी चीज़ होगी वो इसमें ग्राउंड स्टेशन जो ट्रांसमीटर एंटीना होगा ना, ये थोड़ा सा महंगा होगा, ये अराउंड 2000 का होगा, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा ये 5000 या 6000 में प्रोजेक्ट बना सकते हैं स्टूडेंट। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि उसके अलावा क्या क्या सेंसर ये इस्तेमाल करें। कैमरा अगर इस्तेमाल करेंगे तो और महंगा हो जाएगा, अगर वो उसको पीसीबी में डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको और हो जाएगा। तो इन्होंने कैनसेट देखना है और यूट्यूब पे सर्च करना है कि कैनसेट किस तरह बनता है, और इट्स वेरी इजी टू मेक, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें कोडिंग इस्तेमाल होगी क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स होगी तो इसमें कोडिंग इस्तेमाल होगी। सर ये जो स्पेस लोगो है इसमें आपने सबमिशन का कहा हुआ है, तो स्पेस लोगो जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जो है हार्ड कॉपी जो है वो भी अपने साथ लेकर आनी है, और दूसरा जो है उसका जो सॉफ्ट फॉर्म है ये इस तरह है कि नहीं, कि इसके तरफ थोड़ा सा बता दें स्पेस लोगो के बारे में। पर लोगो तो डिजिटल होता है ना, लोगो तो आपने अच्छा। उसकी उसकी कॉपी नहीं निकालनी, प्रिंट नहीं निकालना, कि आपने बस ओके। सॉफ्ट फॉर्म लाना है। अगर कोई स्टूडेंट कॉपी हार्ड कॉपी ले आएगा तो कोई हम तो रोकेंगे नहीं, लेकिन उसकी जजमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन सर, कि अगर सबमिट हो गया फॉर्म, लास्ट डे भी गुजर गया, 2 तारीख मेरे ख्याल से लास्ट डेट है, सर तो दो, उस हाँ यहाँ पे मैं बात सबमिट। क्लियर कर दूँ, 2 तारीख जो है रजिस्ट्रेशन पेमेंट की है, पेमेंट की 2 तारीख है। स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन आप 6 अक्टूबर तक करवा सकते हैं, 7 अक्टूबर तक करवा सकते अच्छा, ठीक हो गया। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट के आप 2 तारीख तक जो है वो बस फाइनल डेट है, उसके बाद आगे हैं। नहीं नहीं एंट्रीज ऐसा नहीं हो नहीं, सकती। नहीं नहीं, हमने कहीं भी ये नहीं लिखा ना, हमने तो सिर्फ ये लिखा है कि पेमेंट रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की तो हमने बात ही नहीं, हम तो इंस्टीट्यूट की बात। ठीक हो गया। थैंक यू सर। सर एक बात पूछनी थी कि जो आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या अभी आप बनाएंगे? तो मेरा तो बना हुआ है, मैंने अभी अभी भी बनाया था प्लेसमेंट बॉक्स का। अच्छा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बनाया हुआ है या बनाना है आपने? नहीं, हमने बनाया हुआ था। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील है जी। अच्छा, सर शकील आपने ना मोबाइल नंबर सही नहीं लिखा, नहीं, मोबाइल नंबर मैंने लिखा था अपने लेकिन एम्बेसडर सही फॉर्म नहीं के लिखा। ऊपर। 300-974-866 मैंने खुद लिखा था। मैं सर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं? हाँ, मैं टेक्स्ट कर दूंगा। मैं कर दूंगा, आपका मैं उसमें नंबर ऐड कर ग्रुप में ऐड कर, आपका नंबर इस पे तो नहीं आ रहा मेरे पास। मैं लिख देता हूँ। 0300-974-8660 है। सर मैंने चैट पे कर दिया। चलें, ठीक है, ठीक है। थैंक अच्छा, यू सर। मिस सादिया, वो जो आप कह रही हैं कि कहाँ से हमें बैंक डिटेल्स मिलेंगी, तो वो बैंक डिटेल्स जो हैं वो जब आप इवेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जब इवेंट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगी तो उसी में पोर्टल में ही वो आ जाएगा, इस पर बैंक डिटेल्स हैं, पोर्टल पे होंगी। तो आपने ये पी के ये देखेंगी तो उसका अकाउंट टाइटल आईएसटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर आ रहा है। मिस सादिया और आपको क्या सर, ये जो बैंक की जो फीस है ये हम लोग ऐप के जरिए कर सकते हैं? इसकी जो एंट्री जी है जी, 10,000 आराम से कर सकते बैंक ऐप की यूज की। हैं, जी जी, कोई सी भी ऐप से कर सकते हैं, इजी पैसे से करना चाहें इजी पैसे से कर दें। ठीक हो गया सर। यहाँ पे जो टीचर्स जो अच्छा, पैसेज, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कहा कि आप किसी और जगह भी डाल देंगे, आपने क्या नाम लिया था, नॉलेज समथिंग ना, मतलब इसी जीरो वेबसाइट पे? ट्रिपल थ्री जी फोर मैम, मतलब ये नॉलेज रिपोजिटरी, 294 नॉलेज रिपोजिटरी। 9667 7। हाँ,
तो ये अभी जो ग्रुप बना हुआ है ये हमारा स्पेस एम्बेसडर फोरम का ग्रुप बना हुआ है। जो ऑफिशियल ग्रुप बनेगा वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का वो वाला होगा जो जिन्होंने इवेंट पेमेंट की होगी, सबमिशन कराया होगा, तो वो ऑफिशियल पेज होगा। ये स्पेस एम्बेसडर फोरम का पेज है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ncgsc.org.uk। ये जो मॉडल्स होंगे सर, इनको ये जो मार्केट में यहाँ पर पिंडी में मिलते हैं, तैयार मिलते हैं, तो सर कौन से वो अगर मॉडल? कोई बच्चे ले आए और कुछ बच्चे कॉलेज से बना के ले आते हैं, तो वो इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये तैयार बना हुआ है या दोनों एक्सेप्टेबल हैं? कौन से मॉडल सर? जो स्पेस रिलेटेड मॉडल्स हैं, अगर कोई कहे मार्केट में किसी बंदे से बना ले, तो वो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, और जो यहाँ पे कॉलेज में कोई स्टूडेंट बना चुका हो उसकी पहचान कोई हो सकती है, मुमकिन है, या दोनों ही एक्सेप्टेबल है? सर वैसे तो हम डिस्प्ले में तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो ओरल प्रेजेंटेशन देंगे ना स्टूडेंट, तो जजेस को उस तरह पता चल जाएगा तो किसने बनाया हुआ है यहाँ पे, किसने कहाँ पे बनाया। ओके। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर हम इसको कंक्लूड करें आज की सेशन को। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज एक टीम है जिसमें दो बच्चे हैं और वो उनमें से एक बच्चा एक और मॉड्यूल में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है? क्लैश तो नहीं आएगा दोनों वो मॉड्यूल्स के टाइम? हमारी कोशिश तो ये होगी कि हम टाइमलाइन इस तरह बनाएं कि क्लैश ना आए किसी के साथ, लेकिन हो सकता है क्लैश आए, तो हम ये करते हैं कि उसको थोड़ी सी कंपनसेशन दे देते हैं। जैसे कि मिसाल तौर पे उसने स्पेस प्रेजेंटेशन दे रहा है वो किसी सर्वाइवल इन स्पेस पे, और उसका एक कंपटीशन क्लैश हो रहा है उसका कैलीग्राफी के साथ, तो हम ये करते हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन पहले कर लेते हैं और उसको बाद में उसको एडजस्ट करके कैलीग्राफी में उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, इस तरह करते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पास होगा, इस तरह हो सकता है क्लैश आ सकता है, तो मैं सब हर टीचर से ये कहूँगा कि जितने ज़्यादा आप स्टूडेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगी, आप सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा लेके जाएंगे। और उसमें इस तरह और अगर क्लैश आ रहा है तो आप वो उस वक्त ऑन द स्पॉट बता देगा किसी स्टूडेंट को, पूरी टीम होगी यहाँ पे, स्टूडेंट मैनेजमेंट टीम होगी। अच्छा, ये आईएसटी के स्टूडेंट्स होते हैं जो करवा रहे हैं सारा इवेंट मैनेज जो करेंगे आईएसटी के स्टूडेंट्स वही करते हैं। जजेस वगैरह जो होते हैं वो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है वर्ल्ड स्पेस की वो स्टूडेंट्स होते तक सर कितने जो है कॉलेज स्कूल जो है वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और लास्ट टाइम कितनी थी रजिस्ट्रेशन कॉलेज स्कूल की? हैं। सर लास्ट टाइम तो 1800 स्टूडेंट्स आए, 1800। ओके। जी क्योंकि लेकिन इस साल हमने स्केल डाउन किया है, मॉड्यूल्स कम है, लास्ट ईयर 70 प्लस मॉड्यूल्स थे, इस साल 36 मॉड्यूल्स हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग हाफ कम हो जाएगा। अभी सर डेडलाइन है अभी, तो अभी मैं बता नहीं सकता आपको सर। ठीक होगी। I think we should wind up this Zoom ओके session. ओके सर। No more बस सर questions. जी, सर बस लास्टली मैं चाहूँगा कि अगर आप सब लोग एक कैमरा ऑन कर लें, एक मैं तस्वीर लेना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट एवरी स्पेस एम्बेसडर टू टर्न देयर कैमरा ऑन। मैंने भी कैमरा ऑन किया हुआ है, मैं भी इसमें सही दिख रहा हूँ अभी, कैमरा शायद अगर कोई है तो।
Miss Amila, Miss Sadia, if you want to. Assalamu alaikum, Miss Sadia. Is it mandatory to switch on the camera, or you are just is not a compulsory? सर आप करना चाहें तो कर लें, अच्छा होगा, यादगार तस्वीर हो जाएगी हमारी। कुछ करना है ना? Yeah, thank you everyone. Thank you so much. I will be looking forward to each of you and thank you so much. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.